is a state which is insurgency prone. The Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Because you see those guys over there, and I'm like, yes, who? He's like those boys over there. And I'm like, yeah, he's like the militants. They actually didn't have the power to do anything, even if they wanted to. Because I had come into that environment listening. And I had come into that environment completely with no violence in me at all. नमस्कार, टाइम्स टाइम और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ने कश्मीर और सेना का अपमान क्यों किया, और क्या जो अब्दुल्ला महबूबा के दिल में है वही राहुल गांधी के एजेंडे में है। 26 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी। 1990 के आतंकवाद के दौर के बाद पुलवामा के अच्छन गांव में संजय शर्मा का इकलौता हिंदू परिवार वहां पर बसा रहा। आज 4 मार्च को मैं संजय शर्मा की हत्या की बात इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जिसके मुताबिक शायद खुद की हत्या में गलती संजय शर्मा की रही होगी। आप हैरान मत होइए मेरी बात से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर कहा है कि मुझे आतंकवादियों ने देखा, लेकिन हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हिंसा नहीं करने गया था। लेकिन भाई, इस दलील से कश्मीर में हो रही हिंसा में दोष उनका है क्या? जो बेकसूर थे, जो हिंदू वहां पर मौजूद थे, जिन्हें भगाया गया। राहुल के इस कैम्ब्रिज वाले ज्ञान के मुताबिक कश्मीर में सिर्फ उग्रवाद है, आतंकवाद नहीं है। 2019 का पुलवामा हमला सिर्फ कार बम था, कार बम वाला हमला था। राहुल गांधी का यह कैम्ब्रिज वाला ज्ञान कश्मीर पर पाकिस्तान के रोल को नजरअंदाज करता है। राहुल का यह कैम्ब्रिज वाला ज्ञान अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के कानों को अच्छा लगने वाला है। इसीलिए राष्ट्रवाद में आज का मुद्दा है कि क्या जो अब्दुल्ला मुफ्ती के दिल में है वही राहुल गांधी के एजेंडे में है, और क्या राहुल गांधी ने कश्मीर में सेना का अपमान किया 2024 के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव आपको बेहतर तरीके से याद होगा कि कश्मीर था, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते करते राहुल गांधी ने कश्मीर में आतंकवाद की समस्या को जिस तरह से परिभाषित किया या परिभाषित करने की कोशिश की, वो हैरान करने वाला है। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं? सुनिए सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। And people are coming, and then one guy looks at me and he says, call me. So I'm like, come. And the security people have said, listen, please don't do this. Please don't call people. Like, we walk here, don't call people, because this is putting everybody at risk. So the guy says, call me. I say, come. So he comes. So he comes, starts walking next to me, and he says, Mr. Gandhi, you've come here to listen to us. So I'm like, yes. So he's like, that's interesting. He's like, you really come here to listen to us? And I'm like, yes. So he's like, good. And then he says, you see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like the militants. Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, they're there. And they're looking at you. So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back. And then we carry on, nothing happens, right? And why I'm telling you this is because they actually couldn't do anything. They actually didn't have the power to do anything, even if they wanted to. Because I had come into that environment listening. And I had come into that environment completely with no violence in me at all. And the vast number of people there were seeing that. Right? So that to me was an indicator of the power of listening and non-violence. अब आपने सुना राहुल गांधी को, आतंकियों ने उनको देखा, उन्होंने आतंकियों को देखा। आतंकियों ने उन पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके मन में हिंसा का ख्याल नहीं था, वो हिंसक माहौल से नहीं आए थे। अब राहुल गांधी की दलील तो दलील, सोच भी अजीबोगरीब है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं।
इन आंकड़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 2022 में आतंकवादियों ने नागरिकों पर लगभग 30 अटैक किए। इन हमलों में 3 कश्मीरी पंडित, राजस्थान के मूल निवासी एक बैंक मैनेजर, जम्मू की एक महिला टीचर और 8 गैर स्थानीय मजदूरों समेत कुल 18 लोगों की जान गई। तो क्या ये लोग हिंसक थे क्या? ये राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए। बेशक आतंकवादी इन्हें मारकर कश्मीर को दहलाना चाहते हैं, सेना और सरकार को चुनौती देना चाहते हैं, भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए चाहे 2016 में बुरहान वानी के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद की स्थिति हो, कश्मीर के आतंकवाद पर लगाम की कोशिशें बहुत हद तक सफल रही हैं। इसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। 2014 के बाद से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 54% की कमी आई है। बदले हुए माहौल में 2022 में कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की तादाद 22 लाख से ज्यादा रही, जो इस बात को साबित करता है स्थितियां बदली है, माहौल सुधरा है। लेकिन जब कश्मीर बदल रहा है तब कैम्ब्रिज से राहुल गांधी की बातें एक अलग सुर आलाप रही हैं। सुनिए राहुल गांधी का एक और बयान। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. अब आपने सुना पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी और उसके बाद हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। राहुल गांधी उसे सिर्फ कार बम हमला बोल रहे हैं, उसे आतंकी हमला नहीं बोल रहे। राहुल जो कह रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, साथ ही महबूबा मुफ्ती भी तो यही बोलती है। कश्मीर पर पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट देना या यूं समझ ले कि आतंकवाद को भड़काने में पाकिस्तान के रोल को नजरअंदाज कर देना, क्या ये वैसी गलतियां नहीं है जो पंडित नेहरू ने की थी? इस पर भी आपको नजर डालना चाहिए। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी, 4 गलतियां मैं आपको बता रहा हूं पंडित नेहरू की। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान कर देना, कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की गलती कर देना, और अंबेडकर के विरोध के बावजूद, जिन अंबेडकर की दुहाई दी जाती है कानून को लेकर, उनके विरोध के बावजूद आर्टिकल 370 को संविधान का हिस्सा बनाना। वो नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हिस्सा बने। नेहरू की ये ऐतिहासिक भूलें थी जिन पर आज भी बहस जारी है। नेहरू की चीन नीति भी सवालों के घेरे में है। हिंदी चीनी भाई भाई वाले नेहरू के दौर के नारे का खामियाजा देश आज तक नहीं भूला है। कैम्ब्रिज गए राहुल गांधी को भी चीन में हार्मोनी दिख गई, उन्होंने उसे भी सद्भाव वाला बता दिया। Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony. अब सोचिए, चीन जो बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है, सैनिकों से उलझने की उसकी तस्वीरें आती हैं, वो राहुल गांधी को सद्भाव वाला लगता है। राहुल के कैम्ब्रिज में दिए गए इन बयानों को लेकर अब बीजेपी हमलावर है, उनकी प्रतिक्रिया आप सुनिए। चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। चलिए, अब राष्ट्रवाद में आपके सामने उन सवालों को रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा कि आतंकियों को राहुल गांधी का पाकिस्तान वाला कवर फायर क्यों? सवाल यह भी होगा कि क्या 2024 के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से कश्मीर और सेना का अपमान किया है? और सवाल यह भी होगा कि क्या कश्मीर पर नेहरू जैसी गलतियां कर रहे हैं राहुल गांधी? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित रैना जो कि रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता हैं। के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सैफुद्दीन सोच जो कि सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं घाटी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज का वो सवाल रखता हूं जिस पर देश के लोगों को अपनी राय देनी है। क्या कश्मीर पर राहुल गांधी की भाषा
पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाली है क्या? आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, पोल करिए, शो के आखिर में देश की राय क्या है वो आपके सामने रखेंगे और साथ ही उस पर मेहमानों से हम सवाल भी करेंगे। चलिए मैं आज की चर्चा की ओर आगे बढ़ता हूं। लोकेश भाई, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। क्या आतंकियों ने राहुल गांधी पर इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी हिंसा वाले माहौल से नहीं गए थे, हिंसा वाली भावना उनके अंदर नहीं थी? क्या लॉजिक है सर ये? पांडे जी, भाजपा और उसकी विचारधारा एक जहरीले सर्प की तरह बन चुकी है। उसे कुछ भी पिलाओ, दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, वो विष में ही बनेगा और वो नफरत ही फैलाएगा, वो लोगों को डसेगा ही, वो विनाश ही करेगा। आपने क्या पूरा लेक्चर सुना राहुल गांधी जी का? मैं बताता हूं। 1 घंटे के उस पूरे लेक्चर में राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। इसके अलावा मैंने वो बहुत बार लेक्चर सुना है, उन्होंने हर जगह भारत का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। लेकिन अगर आपकी मंशा ही बन चुकी है कि आपको नफरत फैलानी है, किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति चलानी है, किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर अलगाववाद, किसी ना किसी मुद्दे पर मार्जिनलाइजेशन, एलियनेशन, किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर किसी एक समुदाय के प्रति नफरत फैलानी है, तो आपको हर जगह ऐसा कोई ना कोई बहाना अवश्य मिल जाएगा। उन्होंने क्या कहा, क्या गलत कहा? नहीं लोकेश भाई, आपने 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला। ये कहना कि आतंकियों ने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि मैं हिंसा का ख्याल रख के नहीं गया था। बिल्कुल सही कहा। अरे तो बताइए ना, जो कश्मीरी पंडित मारे गए वो हिंसा का माहौल रखे थे क्या? हथियार लेकर गए थे क्या? आधार कार्ड लेकर इस साल गोलियां मारी गई है सर, आधार कार्ड लेकर। वो हिंसा वाले थे क्या? हिंसा बढ़ती है। नहीं लोकेश भाई, बहुत पार्टिकुलर जवाब दीजिए सर, बहुत पार्टिकुलर जवाब दीजिए। अहिंसा द्वारा ही हिंसा को काबू में किया जा सकता है, जीता जा सकता है। लोकेश भाई आपकी सहूलियत के लिए ग्राफिक्स में स्क्रीन पर रख देता हूं, जरा वो ग्राफिक्स रख लीजिएगा। 2022 में कुल 30 आतंकी हमले हुए, 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, राजस्थान मूल के एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई, जम्मू की एक महिला शिक्षक की हत्या हुई, 8 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या हुई। और यह भी जान लीजिए, इनमें से मैक्सिमम लोगों को आधार कार्ड मांगकर देखकर हिंदू हो गोली मारी गई। वो हिंसा वाले थे क्या? अब आप मुझे मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या सभी कश्मीरी हिंसक लोग हैं? क्या सभी कश्मीरी लोग जो है हिंदुओं के विरुद्ध है? क्या सभी मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं? नहीं आप मुझे जवाब दीजिए। लोकेश भाई कश्मीरियों की बात नहीं, आतंकियों की बात हो रही है। तो आपकी नजर में क्या सारे कश्मीरी आतंकी है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, आतंकियों से अगर आतंकवाद की हम बात करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आतंकवाद पनप रहा है कश्मीर में? लोकेश भाई मैं जो पूछ रहा हूं, बिल्कुल मत घुमाइए, आर्थिक मुद्दे हैं, आपका जवाब देंगे। मैं पूछ रहा हूं, जिनके कारण आतंकवाद पनप रहा है, क्या इन लोगों को मारा गया, ये लोग हिंसा वाले थे क्या? आप फिर से बोलेंगे एक बार, आपकी आवाज? क्या जिन 30 लोगों को मारा गया सर, 18 लोगों को मारा गया, 30 आतंकी हमले हुए, वो 18 लोग हिंसा वाले थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। तो क्यों मारा गया सर? बिल्कुल नहीं थे। और क्यों मारा गया? सबसे ज्यादा दुख है, क्यों मारा गया? उनको बिल्कुल नहीं मारा जाना चाहिए था। ठीक है, नहीं बिल्कुल, उनको आतंकवाद ने मारा, एक ऐसे रोग ने मारा। पहले अपने नेता को सिखाइए, पहले अपने नेता को सिखाइए कि आतंकवाद बोले। वो कहते हैं उग्रवाद प्रभावित राज्य है। हमारे लोकेश भाई पहले अपने नेता को सिखाइए। चलिए आरपी सिंह। पांडे जी सुनिए, ठीक है सर। अभी केंद्र की राजनीति है ना, जो नीति है, उससे आतंकवाद और बढ़ रहा है। नहीं सर, तो ठीक है ना, आतंकवाद को आतंकवाद मत बोलिए, खत्म हो जाएगा आतंकवाद। आरपी सिंह, उग्रवाद प्रभावित राज्य है, आतंकवाद प्रभावित राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल प्रभावित। आरपी सिंह जी धन्यवाद। पांडे जी, इनसे पूछिए, ये कह रहे कि अहिंसा से हिंसा रोकी जा सकती है, तो फिर बांग्लादेश में क्या करने गए थे भारत की आर्मी? बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किस लिए किए भारत की आर्मी ने? ये सब में क्या है कि जो जब छूटे तब तो वो माँ दुर्गा बना दी गई थी, जो जब छूट करे तब ठीक। परंतु ये बता के तैयार नहीं है कि जब वहां पर एलानिया तौर पर रोज शाम को ऐलान किया जाता था मस्जिदों से कि कश्मीरी पंडित छोड़ के जाओ, नहीं तो अपनी बहु बेटियां यहाँ, आपकी बहु बेटियों को हम रख लेंगे यहाँ पर और आपको काट देंगे। आपको टोका नहीं, मैंने दोस्त अच्छी बात की है। लोकेश भाई सुन लीजिए, आरपी सिंह तब तक आपको सुन रहे थे जब तक आप बोल रहे थे। लोकेश भाई तो सुन लीजिए सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लोकेश भाई सुन लीजिए,
मैं बिल्कुल बीच में नहीं सर। आरपी सिंह अपनी बात पूरी करिए। अब तो वकील है, जिना करते हैं कोर्ट में, सुनने की क्षमता भी रखा करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि निरंतर ये उन लोगों के समर्थन में दिखते हैं जो देश को बांटने के लिए खड़े हैं। आज महबूबा मुफ्ती इनके साथी है, इनके साथ चल रही है, इनका साथ दे रही है। कौन महबूबा मुफ्ती है जो कहती थी अगर 370-35 से हटा तो तिरंगे को कांधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिलेंगे? वो आज वही महबूबा मुफ्ती है। कल तक धारा 370-35 से जिस हटी 5 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को राहुल गांधी ने कहा वहां पर कत्लेआम हो रहा है। ये बयान है राहुल गांधी का, और कोर्ट किया बीबीसी को कि वहां पर कत्लेआम हो रहा है, वहां पर लोग खून की नदियां बह रही हैं। ठीक है, सच तो कुछ और ठीक है। मैं आरपी सिंह सर आता हूं, सैफुद्दीन सोच के पास में जाता हूं। सैफुद्दीन सोच जो राहुल गांधी की भाषा है वो कमोबेश महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला साहब जो बोलते हैं उसी तरीके की भाषा है। एजेंडा अंदर खाने में समझौता हुआ क्या जब पहुंचे हुए थे? तो पाकिस्तान परस्त भाषा, आतंकवाद नहीं है, उग्रवाद है, आतंकी नहीं है। लहराने के लिए सैफुद्दीन सोच 5 घंटे अच्छा मेरी बाग थाने में जानवर की आरपी सिंह सर मैं आता हूं एक एक करके मैं सबकी टिप्पणी ले लूं। ठीक है, अभी सैफुद्दीन सोच। आप कुछ लोग आपके पास भी हैं, खुद ये चैनल भी मुझे लगता है कि आप ऐसी बातें उठाना चाहते हैं जिसमें लगे जो आरएसएस और बीजेपी के इंतहा पसंद लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट, उन्हीं की भाषा में बोलते हैं जैसे कश्मीर में सब गलत है। राहुल गांधी ने बड़े मुद्दबिराना तरीके से यह कहा कि उनका मतलब है कि कश्मीर में हर शख्स के पास बंदूक नहीं है। कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, डायलॉग चाहते हैं, बात तो कर सकते हैं ना। राहुल गांधी के सारी तकरीर का खुलासा ये है कि कश्मीर में बात हो सकती है, मैं चला, मुझे कोई खतरा नहीं महसूस हुआ, किसी ने डराया नहीं, और मैं पैदल चला और डराया किसी ने नहीं, और वहां के लोग जो है वो अमन चाहते हैं। इसलिए उसी बात को आप पहचान लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। नहीं सैफुद्दीन साहब, ये नहीं, ये अब आप राहुल गांधी को उनकी पार्टी के नेता है सर, तो आप कवर फायर देंगे, मुझे पता है, मुझे पता है सर कि आप कवर फायर देंगे। सैफुद्दीन सोच तो ये मानिए हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर के जो आम लोग हैं ना सर वो हिंसा चाहते हैं। कश्मीर के आम लोग बहुत शांति चाहते हैं, बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं सर। गाली गलौज नहीं हो सकता। सैफुद्दीन भाई, सभी लोग वहां पर शांति चाहते हैं, बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आतंकवादी नहीं आते, उग्रवादी मारकर चले आए। पाकिस्तान उग्रवादियों को बेचता है क्या? नहीं सुनिए, नहीं पाकिस्तान उस पार से उग्रवादियों को बेचता है क्या? नहीं सुनिए बात, पाकिस्तान की शाह पर करें या खुद करें, बंदूक है कश्मीर में, मैं इनकार नहीं करता, मगर रास्ता अमन का निकल सकता है डायलॉग से। नहीं निकल तो सकता है सर, लेकिन समस्या को सही से तो मानिए। नहीं बिल्कुल आपकी सैफुद्दीन भाई बात सही है, हर समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन समस्या की जड़ को तो पहचानिए। अमित रैना, उग्रवादी आते हैं क्या पाकिस्तान से? सुनिए, लोगों को गुस्सा, आप बात नहीं समझ रहे। आपने 370, ठीक है सैफुद्दीन साहब अपनी बात पूरी करिए, मैं 20 सेकंड देता हूं, फिर उसके बाद अमित रैना। फारूक अब्दुल्ला, सुनिए एक बात, तो पहले 1-1.5 मिनट तो बात सुनो, 2 मिनट बात सुनो। फारूक अब्दुल्ला नेशनलिस्ट है, महबूबा मुफ्ती नेशनलिस्ट है, वो देश के खिलाफ कुछ नहीं कहती है। तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये किसी नेशनलिस्ट की भाषा होती है क्या? है ये प्रो इंडिया है, मगर एक बात है, ये प्रो इंडिया है तो, लेकिन यहाँ की आरज़ुएं जो है, यहाँ लोगों के जो ख्यालात हैं उनको डायलॉग से समझने की कोशिश कीजिए। आपने किस ताकत से 370 खत्म किया? जो यहाँ लड़ाई करेंगे उनके साथ मैं भी हूँ। सुनिए सैफुद्दीन साहब, अमित रैना आपको जवाब देंगे, मैं लेकिन मैं एक बात कह दूं, सैफुद्दीन साहब हो गया सर, आपने 3 मिनट बोल लिया। सैफुद्दीन साहब, जिन नेता को आप नेशनलिस्ट बता रहे हैं ना सर, तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये नेशनलिस्ट की भाषा नहीं होती है। खून खराबी का 47वां दौर आ जाएगा, नेशनलिस्ट की भाषा नहीं होती है। जो कहे कुरान मानी आतंकी नहीं चाहिए, नेशनलिस्ट की भाषा नहीं होती है, ये आपको समझना चाहिए। खत्म किया जो कहेगा चीन की मदद ले लेंगे सर, वो नेशनलिस्ट की भाषा नहीं होती है। तो पहले नेशनलिस्ट की परिभाषा अपने नेताओं को जाकर समझाइए। अमित रैना, ये नेशनलिस्ट की भाषा होती है क्या? ठीक है सर, सैफुद्दीन साहब सुनिए। अमित रैना, मुझे पता चला है कि कश्मीर में जो नारे लगते थे, हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू औरतों के साथ जहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, जहाँ रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये सारे के सारे प्यार के संदेश थे। ये आज मुझे 30 सालों बाद पता चला है।
5 लाख लोग बेघर हैं क्योंकि वो कलम जो है, उनके हाथ में कलम को हथियार माना जाता और उनको लगता था कलम नहीं तलवार है, क्योंकि वो आतंकवादी अंधे थे। ये आज मुझे पता चला है कि रजनी बाला जो शिक्षा देती थी कश्मीर में, वो शिक्षा नहीं दे रही थी, तलवार से लोगों का सर काट रही थी। आज मुझे पता चला है जो बैंक मैनेजर था, जिन लोगों की सेवा करता था, वो सेवा नहीं कर रहा था, वो गोलियां चला रहा था। इस देश के हर गांव, हर कस्बे ने अपना बेटा गंवाया है कश्मीर में, कश्मीरियों की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए। आज मुझे पता चला है इस देश के हर गांव ने, हर कस्बे ने बेटा नहीं जन्मा है, एक खूनी दरिंदा जन्मा था जो कश्मीर भेज दिया था। ये राहुल गांधी का कहने का मतलब था। ये खुले आम आतंकवादियों को क्लीन चिट देना, उन्हें हीरो बनाना उन्हें शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये एक बड़ा ही क्लीन मैसेज था। आतंकवादी हमला तभी करता है जब आप उनको नाराज करते। अभी ये वकील साहब जो कांग्रेस के आए थे, क्या कह रहे थे? कश्मीर में सिविल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक अनरेस्ट है। अरे भाई साहब, इकोनॉमिक अनरेस्ट में जिहाद होता है, गजवाए हिंद होता है, हिंदुओं को मारा जाता है आधार कार्ड देख के। ये जो सर्टिफिकेट देना शुरू किया है, जो पाकिस्तान ने बंद कर दिया अपने आर्थिक के कारण, अब उसकी जगह ले लिया कांग्रेस ने आतंकवादियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है माजिद हैदरी, मैं आपके पास आता हूं। आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे राहुल गांधी के इस बयान से, लेकिन एक बात बता दीजिए, अमित रैना जैसे लाखों कश्मीरी पंडित जो वहां से छोड़कर चले आए सरघाटी, उस समय वो हिंसक थे क्या, जो मस्जिदों से नारे लगे थे? या फिर मुंबई में अटैक हुआ था तो वहां के लोग हिंसक थे जो आतंकी कहे चलो मुंबई? राकेश भाई, 3 तर्क रखूंगा आपके सामने। पहला यह कि जिस व्यक्ति के पिता की और दादी की हत्या आतंकवादियों ने की हो, उसे भाजपा से राष्ट्रवाद का सबक नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे कहनी चाहिए माजिद हैदरी। देखिए राकेश भाई, आप मुझे मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं सर, आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन आपने शुरुआत में ऐसी बातें बोली, तो वैसे नेता को ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं तो ठीक, बिल्कुल। दूसरी चीज, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का सांसद इतना पढ़ा लिखा है कि वो जाके कैम्ब्रिज में बात करते हैं। और तीसरी चीज, जो कि सबसे बड़ी, जो इसमें सबसे खास चीज है, वो ये है कि आरपी सिंह जी क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, अमृतकाल थमसा गया है। इस देश की स्थिति ऐसी है कि इस देश के संसद में बात करे, आतंकवादी नहीं है, राहुल गांधी जी की जबान नहीं है, संसद वो में बात मेरा प्यारा दोस्त है, आतंकवादी मेरे प्यारे दोस्त है। कहां करें? वो मेरी शक्ल देखकर गोली नहीं चला रहे थे। जब धारा 335 से हटाई थी, माजिद हैदरी अपना बयान बताओ, क्या था, आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? आपका बयान और राहुल गांधी का बयान एक था, दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे, और आज भी एक ही भाषा बोल रहे थे दोनों। तब आपने कहा था कश्मीर में खून की नदियां बह रही है। चले सांसद को, एक यतीम सांसद को आप संसद में बात नहीं करने देते, कैम्ब्रिज में बात नहीं करने देते। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। माजिद हैदरी, एक बात सुन लीजिए सर। माजिद हैदरी, ये किसी नेता का कैम्ब्रिज में पहला लेक्चर नहीं है, पहली तो ये बात समझिए। और आपके जो अलगाववादी नेता है, जो वहां पर पत्थरबाजी सिखाते हैं ना कश्मीर के युवाओं को, वो अपने लड़कियों लड़कियों को भेजते हैं सर बाहर पढ़ाने के लिए। तो इतनी ज्ञान की बातें मत यहां पर किया करिए माजिद हैदरी। आपके एजेंडे को सूट करता है, ये एक अलग बात है। के सिन्हा साहब सुन लीजिए, अरे रुकिए, मैं जानबूझकर के सिन्हा साहब के पास सबसे आखिर में जा रहा हूं। के सिन्हा साहब, 2 बातें हैं। राहुल गांधी के पिछले 3-4 साल के मैं स्टेटमेंट निकालूं, सेना पर बार-बार टिप्पणी, बार-बार अपमान करने वाली टिप्पणी, क्या आप 2 चीजें आप जरूर बताइए सर, क्या इससे सेना का मनोबल गिरता है? दूसरी बात है, 2014 के बाद से और 370 जब से हटा, किस तरीके से आतंक में, कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है? जय हिंद। देखिए राकेश जी, आपने मुझसे पूछा है 2 चीजों के ऊपर में कि 2014 के बाद किस तरह से चीजें हुई हैं। वो तो आंकड़े बताते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं, और किस तरह से चीजें, हालात बदली हैं और किस तरह हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। अभी बात है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने क्या बोला और कैम्ब्रिज में क्या बोला। देखिए, रॉयल विंची के नाम से वो जाने जाते हैं कैम्ब्रिज के अंदर में, जो एक फ्रॉड के नाम है, उस नाम से, और वहां वो लेक्चरिंग कर रहे हैं। और जब पुलवामा को कार बम कह देते हैं, और पूरे इस्लामिक टेररिज्म को वो कह देते हैं कि मिलिटेंट है, इंसर्जेंसी है। पहले शब्द में कहते हैं कि वहां पर बहुत वायलेंस है, फिर कहते हैं आई वॉज वॉकिंग वेरी सेफली इन कश्मीर। हमने 2 आतंकवादी देखे, आई सॉ 2 उन्होंने देखा, आई वॉज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस।
छोड़ के भाग गए, आपने उस पर डिबेट कर लिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपने पूछा नहीं। देखिए उन्होंने क्या कह दिया कि चाइना इज ए वेरी हार्मोनियस सोसाइटी, और वहां पर हार्मोनी है, हार्मोनिक है, और पूरा विश्व उसको एक किनारे करता है और चाइना के गुण गाए। नहीं के सिन्हा साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर। ये हमने मैं अपनी बात पूरी करिएगा सर। ये हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि पंडित नेहरू वाली गलती कर रहे हैं राहुल गांधी। अपनी बात पूरी करिए। देखिए राकेश जी, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उनको वो नहीं दिखाई देता कि वहां पर तिब्बतनों का क्या हाल हुआ, युगुर का क्या हाल है। डिबेट करते हैं। अरे सुने साहब, मैं नहीं कुछ बोला, सुने तो सही। ये डिबेट है, ये डिबेट होनी चाहिए। आप अपने सरजमीन को छोड़ करके एक बाहर में जाकर के वर्ल्ड फोरम के ऊपर में इस तरह की चीजें जो एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं, बोथ इन कश्मीर एंड ओवरऑल चाइना के अगेंस्ट में, हमको यह दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये तो जब हुआ था हमारा गलवान के पहले, जब वो हमारे यहां आया था डोकलाम में, तो ये तो चाइना के लोग के साथ बैठ करके ये पार्टियां कर रहे थे। देखिए ये बहुत बड़ी साजिश है, इन साजिशों को समझिए। हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है ये पॉलिटिकल डिबेट हो सकते हैं, पॉलिटिकल, बट नैरेटिव पैदा करना अपने सेना के लिए या आंतरिक खतरे के अलावा अब बाहरी खतरे। एक चीज के सिन्हा साहब मैं आपसे समझूंगा सर, एक चीज, और एक सेना के अधिकारी के तौर पर सर, पुलवामा में हमारे जवानों ने शहादत थी, ठीक, हमने उसका बदला एयर स्ट्राइक से लिया, लेकिन उस हमले को सर सिर्फ कार बम धमाका बोल देना, क्या सेना के जो जवान हैं उनके मन पर क्या बीत रही होगी सर? ये तो हमारे ऊपर तो डेली छुरे चलाते हैं जवान, हमारे जवानों की शहादत तो बम रखा गया था, हमारे शहादत को कार बम, और फिर कह देते हैं कि ये मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी का मतलब होता है, इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि अपने लोग अपनी व्यवस्था से निकलना चाहते हैं। अरे भाई, टेररिज्म एंड इस्लामिक एंड हाइब्रिड टेररिज्म, हाइब्रिड वॉर, तो हमारे सेनाओं के ऊपर में पढ़ा लिखा सांसद किया था कैम्ब्रिज, कोई गौरक्षक नहीं किया था। अरे मेरे भाई, सांसद किया था, तो रॉयल विंची को कैसे गौरक्षक की बात करते हैं? क्या बोले? अरे आप बताइए, इस नैरेटिव को तो आप बताना चाहते हैं तो बताइए ना, जिससे हमारे देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ, और वो कार बम हुआ कैसे, वो आप भूल जाते हैं कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए कैमरे से, तो तब सेना में थे, बताइए हमारे जवानों के ऊपर में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। माजिद हैदरी, सिन्हा साहब, माजिद हैदरी सुनिए ना, माजिद हैदरी सुनिए, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए सर। आपको यहां पर सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, उतना ही काम करिए, इधर उधर और अपनी हेट प्रोपेगेंडा यहां पर मत फैलाइए। मैं आगे बढ़ता हूं। पांडे जी एक जानकारी आपको दूं। हाँ, आरपी सिंह आप कुछ बोलिए, फिर लोकेश भाई आपके पास आता हूं। ठीक है, आरपी सिंह। उन्होंने एक पाप और किया, सिर्फ कश्मीर को लेकर ही नहीं, उन्होंने एक सिख बच्चे को इशारा कर कहा कि तुम्हें सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, और मैं इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर रहा हूं कि एक सिख बच्चे को इशारा कर कह रहे हैं, और ये खालिस्तानियों को शह दे रहे हैं, ये कहकर। और ध्यान कर लीजिएगा, फिर तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए ना आरपी सिंह, फिर तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी और सिख दंगे हुए थे इस देश में, जिसके दाग आज तक नहीं धुल पाए, और जिसके लिए माफी मांगते हैं बार बार कांग्रेस के नेता। मैं आगे बढ़ता हूं। 30,000 सिखों को मारा, और वो कहते हैं कि आपको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। लोकेश भाई, ठीक, अरे माजिद हैदरी रुक जाइए सर, माजिद हैदरी रुक जाइए। लोकेश भाई, पुलवामा हमला हुआ, जवानों ने शहादत दी, और एक जरा तस्वीर अगर सामने हो तो मैं चाहूंगा उस तस्वीर को रखिएगा। जब दिल्ली में पुलवामा के जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, राहुल गांधी क्या कर रहे थे उस दौरान, पता है आपको? आपने तस्वीर देखी होगी, मैं सिर्फ याद दिला देता हूं। राहुल गांधी मोबाइल देख रहे थे, राहुल गांधी उस वक्त मोबाइल में बिजी थे, लूडो खेल रहे थे। लोकेश भाई, पांडे जी, मैं जवानों की शहादत हो जाए, आप उससे सिर्फ कार बम धमाका बोलिए, आतंकी हमला क्यों नहीं कहे? पिछले साल मई 2022 में मैं कश्मीर में था, कुछ 8 से 10 दिन मैंने कश्मीर में बिताए, और जब मेरे स्टूडेंट्स को वहां पता लगा कि मैं कश्मीर में हूं, जो भी कश्मीरी स्टूडेंट्स थे वो सब आए,
और इतनी अच्छी मेहमान नवाजी कश्मीर में हुई। लोकेश भाई सुनिए ना सर, आज का थोड़ा समय कम रहता है। सुनिए ना लोकेश भाई, थोड़ा समय कम रहता है सर, सिर्फ सवाल पर रहिए, डिरेल मत करिए सर। मैं भी 10वीं बार कवर करने के लिए गया हूं श्रीनगर में, बहुत अच्छे लोग मिले, ऐसा कहना अच्छे तरीके से सभी कश्मीरी मेरे बहुत दोस्त भी है सर। नहीं मुझे नहीं लोकेश भाई, या तो सर आप सवाल का सीधे से जवाब दीजिए। नहीं देखिए, पुलवामा हमले को कार बम धमाका बोलना ठीक है क्या? पांडे जी, और सभी कश्मीरियों को उग्रवाद कहना कौन ठीक कह है रहा क्या? है? कौन कह रहा है? आप कह रहे हो अभी। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। को प्रमोट करने वाले लोग कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आपने पूरे समुदाय को, मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने बिल्कुल क्या नहीं गलत बोला? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अमित रैना, अरे रुक जाइए सर, एकदम एजेंडा मत फैलाइए सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अमित रैना किसने कहा सारे कश्मीरी खराब है? ये मुट्ठी बंद नहीं, यही कह रहे हैं। जब से जब प्रोग्राम शुरू हुआ है सिर्फ लोकेश जी कह रहे हैं कि किसी तरह से साबित करना चाहते हैं कि कश्मीरी, जिसमें मैं भी हूं, मैं एक आतंकवादी हूं, इनका निरंतर प्रयास चल रहा है तब से कि सारे कश्मीरियों को आतंकवादी कहे और किसी तरह राहुल गांधी जो बकवास करके आए हैं उसमें समर्थन करें। अमित कि हाँ, सारे कश्मीरी आतंकवादी है। आप यहाँ पर अपने राजनीतिक मकसद के लिए जो विषैला नेता जो आपसों में समुदायों को लड़ा रहे हैं ताकि आपके बुढ़ापे में आपको कोई राजनीतिक पद मिल जाए, उसके लिए आगे की पूरी भविष्य की पीढ़ी खराब हो सकती है। नेता कांग्रेस अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए ना इस तरह का विषैला अरे सुनिए लोकेश भाई, एक एक करके बोलिए सर। लोकेश भाई अरे सुन लिया करिए ना सर। अमित रैना से मैंने पूछा तो अमित रैना को सुनिए, फिर आप करिएगा सर। जिसने सिखों का नरसंहार किया वो परिवार का बेटा कहता है सिखों को तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, उसको तो हक ही नहीं सिखों पे बोलने का। जिसने एक आर्मी वेटरन को बेइज्जत करके सरकार से निकाल दिया वो कह रहा है सिखों को तुम। लोकेश भाई की आवाज अभी डाउन करिए, सिर्फ अमित रैना की आवाज ऑन एयर जा रही है। लंदन में दिखा रही थी, सिर्फ अमित रैना की आवाज ऑन एयर जा रही है। लोकेश भाई मत बोलिए लगातार। मैंने अमित रैना से सवाल पूछा सर, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी मेहमान को लेकर कहूं कि आपकी आवाज में नीचे कर रहा हूं ताकि दूसरा बोल सके। ऐसे नहीं होता है सर, बारी बारी से सुना करिए। अमित रैना अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सैफुद्दीन साहब के पास जाऊंगा। देखिए, ये आज जो बैठकर आतंकवादियों को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, किसने कहा सारे कश्मीरी आतंकवादी हैं? इस कार्यक्रम में 6 लोग बैठे, सिर्फ एक व्यक्ति जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह एस्टेब्लिश किया जाए कि सब लोग कह रहे हैं कि सारे कश्मीरी आतंकवादी हैं। क्या औरंगजेब आतंकवादी था जो शहीद 1600 जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, वो सब मुसलमान थे? क्या वो आतंकवादी थे? ये निरंतर प्रयास, एक नैरेटिव बार बार जो कैम्ब्रिज में नैरेटिव चला। देखिए, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में फर्क होता है। राहुल गांधी को पता नहीं चलता है कब वो राजद्रोह से राष्ट्रद्रोह पे चले जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करके आकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में आम व्यक्ति को बात करने नहीं दी जाती है। तो 4000 किलोमीटर की यात्रा क्या करके आए वो? सारे लोगों से तो मिलकर आए हैं वो। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मगरमच्छ मैं आता हूं। ठीक है अमित रैना रुकिए, अमित रैना एक मिनट सर। सैफुद्दीन साहब, जो सवाल मैंने लोकेश भाई से पूछा था वही सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं सर, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप सीनियर आदमी सीधे से जवाब दे देंगे। पुलवामा आतंकी हमले को कार बम धमाका बोल दीजिए। यहां पर जब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो राहुल गांधी मोबाइल देख रहे थे सर। यही सम्मान है क्या शहीदों का? नहीं, सुनिए ये प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी के खिलाफ। क्या प्रोपेगेंडा है? कार बम कहा, उन्होंने कहा कि वहां तशद्दुद फैल गया कार बम से। कार बम धमाका सिर्फ कहा सर, कार में आतंकी हमला नहीं कहा। बोल देते कार बम धमाका करके आतंकियों ने हमला किया, बात है तो मैं नहीं उस पर सवाल पूछता सर। आप राहुल गांधी के खिलाफ देखिए, ये सुनिए, ये एक तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में ये इंप्रेशन है जो बारी अक्सरियत है, इन सारी चैनल्स को मौजूदा शासन ने एक किस्म से खरीद लिया है। आप आर्गुमेंट के लिए तैयार नहीं है, डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। आप नहीं, आपके नेता सर, आपके नेता एक आतंकी हमले को सिर्फ कार बम धमाका कहे और आप चाहेंगे हम सवाल न उठाएं। और एक स्टेटमेंट है क्या? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, डायलॉग एक स्टेटमेंट है, मैं आपको गिनवाऊं कश्मीरी के साथ, गिनवाऊं क्या मैं? कितने स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिए सेना के खिलाफ? चाहे महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, जब मुझे से लोग हैं, हम आपको मदद करेंगे डायलॉग करने में। सर मदद करेंगे,
सुनिए, नहीं सर, जो बंदूक लेकर आएगा उससे कोई बातचीत नहीं होगी। कोई वो वैसे इंसान से देश नहीं बातचीत करेगा जो बंदूक लेकर आएगा। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव है, नहीं सर, तबाह करेगा हिंदुस्तान ठीक है। का जो मरकजी सरकार है छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको खराब के सिन्हा साहब, अभी सबकी आवाज नहीं, रुक जाइए सैफुद्दीन साहब, रुक जाइए सर, डायलॉग कितने हो चुके हैं, ठीक है। के सिन्हा साहब, ये अजीब सी स्थिति है, सिर्फ सियासत के लिए सेना को कुछ भी बोलकर चले जाइए। और इस समय हमने ग्राफिक्स रखा हुआ टेलीविजन स्क्रीन पर, कब राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ टिप्पणी की है, कब राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ टिप्पणी की है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, मोबाइल चलाते हैं, यह गंभीरता है। देखिए राकेश जी, जो ये देखिए ऑपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब वो हमारे पूरे देश के 1.5 करोड़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कैसे जो हमारे को बार बार हमारी शहादतों पे, हमारे सेना के जवानों के काम करने के तरीके पे, गलवान के शहीदों का जिस तरह से वो बार बार तिरस्कार करते हैं वो तो ये कह गए कि ये लोग तो ऐसे ही मारे गए और उनको मारा गया। जब पूरा का पूरा देखिए, जब आपके यहाँ की, अरे मेरी बात सुन लेना भाई साहब, सैफुद्दीन साहब, के सेना के अधिकारी रह चुके हैं सर, उनको सुनिए, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, सुने ना। सिन्हा साहब अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए राकेश जी, जब कर्तव्य पथ के ऊपर में जब साइटेशंस पढ़े जाते हैं, उस समय आप उन चीजों को साइटेशंस में बताया जाता है कि क्या किया गया, मगर वो कहते हैं कि नहीं खून की दलाली कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये तो भाड़े के टट्टू हैं, ये तो कुछ कर, ऐसी बातें करना। अग्निवीर के ऊपर में वो सरकार को कहते हैं अग्निवीर एक, देखिए कुछ भी हम करें, सेना का कुछ भी हो, वो लगातार सेना के मनोबल के साथ खेलते हैं। ये नहीं कि केवल कश्मीर में, सेम चीज है चाइना के विशेषज्ञ और जिस तरह से आप प्रमोट स्तर पे आकर किसी प्रकार की टिप्पणी देना सही है क्या? नहीं, और एक राजनीतिक आदमी का, एक राजनीतिक शख्सियत का सेना पर टिप्पणी करना ठीक है लोकेश भाई, नहीं आप, लेकिन सेना का अधिकारी उसे कुछ बुरा लगे, उसकी भावनाएं आहत हो जाए तो वो ना बोले किसी राजनीतिक शख्सियत पर। आपको तो समझाइए ना सर अपने नेता को, आपका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, मगर आप क्या करते हैं, हमारी सेना आपकी भी है, प्रसन्न करके सेना आपकी भी है, सैनिक देश के बारे में बात नहीं कर आप जान नहीं रहे कि आपकी नफरत भरी मैं आगे बढ़ता हूँ, एक ब्रेक लेना होगा, भविष्य की एक ब्रेक लेना होगा आरपी सिंह, एक ब्रेक लेना होगा। और लोकेश भाई, राजनीतिक शख्सियत सेना पर टिप्पणी करे ठीक है, लेकिन सेना का अधिकारी उसे कुछ बुरा लगे ना बोले, ये अजीब सिद्धांत आपने निकाला है। चलिए यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि क्या कश्मीर पर राहुल गांधी की भाषा पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाली है, देश की राय क्या है वो आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सवाल पर आपकी राय बता देते हैं। आज का सवाल था, क्या कश्मीर पर राहुल गांधी की भाषा पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाली है। देखिए, देश के 90% लोग मानते हैं कि हाँ, 10% लोग मानते हैं कि नहीं। अब लोकेश भाई देखिए, यही दिक्कत है कि आपकी पार्टी देश के मूड को नहीं समझ पा रही। पांडे जी, भाजपा की जो रणनीति है ना कि ऐसा बैर बांध दो एक धर्म के प्रति, एक समुदाय के प्रति, कि सभी लोग जो है अपने असली मुद्दे भूलकर इतने ज्यादा तीव्र और अग्रेसिव हो जाएं कि उन्हें राजनीति के तौर पर भ्रमित किया जा सके। नहीं, अब इसमें धर्म आपने कहां से जोड़ दिया लोकेश भाई? अरे धर्म कहां से जोड़ दिया? और आरपी सिंह, ये धर्मी एजेंडा था क्या कि माइनॉरिटीज को लुभाने के लिए? सर 1 मिनट का समय है, 20 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं सर समय। आरपी सिंह, आपको भी 20 सेकंड सर। ये धर्म ही वजह है माइनॉरिटीज को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने बोला। कश्मीर का लेकर मुंह खोला था, इमरान खान ने यूएन में कोर्ट किया था, इमरान खान ने। और अफसोस है कि अब कश्मीरी जो आतंकवादी हैं वो भी उनको कोर्ट करेंगे और खालिस्तानी भी कोर्ट करेंगे। जो उन्होंने कहा कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, और जो कहा कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है और वहां पर मेरे को देखकर आतंकियों ने हमला नहीं किया। ये दिखता है कि ये एजेंडा है। वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर जो देश की राय है, ये कांग्रेस पार्टी को देखनी और समझनी चाहिए। लेकिन ये सवाल तो बड़ा वाजिब था कि क्या जो कुछ राहुल गांधी ने वहां पर बोला वो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर बोला क्या? राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।